Okay, so on last lecture we were discussing what do we mean by regular and what do we mean by non-regular languages, and I have also sent you a video on our WhatsApp group, which was a very short and a good video to understand the difference between the regular and non-regular languages. I hope that everyone has seen that video. Then we have discussed pumping lemma, and we have discussed it proofs as well. If the theoretical paper comes, normally proof is important. We will go for the application of pumping lemma, which is our today's agenda. We will solve certain questions of the languages. So where languages being given to us, and we have to decide whether the given language is regular or not. Okay. Or in case we know that language is not regular, but we have to prove it, yes, language is not regular. So this is the main application of pumping lemma. So this theorem can be used to prove certain languages are not regular. How we can prove? So there are it is a three-step process. Step 1, assume that L is regular. So first of all, let us assume that L is regular. हम L को ही assume, चाहे भले ही हमें मालूम हो कि L is not regular, what we will do, we will assume that L is regular. Okay, उसके बाद हम इसको contradiction से prove करेंगे. We will contradict whatsoever we have assumed. Okay, so we have assumed that L is regular, and also we have assumed that अगर regular है तो यानी इसके corresponding FA possible होगा. FA possible होगा तो उसमें कुछ finite number of states होंगी. So let N be the number of states in the corresponding FA. Is it? This is step 1. So this is our assumption. The second step is, because we have assumed that our language is regular, so it must satisfy the pumping lemma. It must satisfy the pumping lemma. So we will have all the conditions of pumping lemma and try to see whether it satisfies it or not. So now what we'll do, we'll choose a string W belonging to L. अब उस लैंग्वेज L का कोई एक वर्ड हमने ले लिया such that the length of W is greater than or equal to N, यानी कि एक sufficient length का वर्ड हमने ले लिया, यानी कि जो हमारी पंपिंग लीमा कहती थी कि हम एक वर्ड लें जिसकी लेंथ उसमें जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उससे ज़्यादा हो, यानी सफिशिएंट लेंथ का एक वर्ड लें, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं. वी हैव अज्यूम दैट L इज रेगुलर और हमने एक सफिशिएंट लेंथ का वर्ड उस लैंग्वेज से हमने चूज किया. नाउ यूज द पंपिंग लीमा टू राइट W is equal to XYZ with XY length of XY less than equal to N and length of Y greater than equal to 0. So you can write either length of Y is greater than equal to 0, or you can write the length of Y not equal to 0, or you can write that Y is not equal to null. So all three things are similar. So when I say length of Y greater than equal to 1, not greater than equal to 1, it should be greater than, okay, it is not 0, it is greater than equal to 1. Just make this correction. जीरो नहीं हो सकता. ओके, या मैं सीधे लिख दूं लेंथ ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी वही बात है, और या मैं लिख दूं y इज नॉट इक्वल टू नल, तब भी वही बात है. इज इट क्लियर? वी विल राइट our W in the form of XYZ with these conditions, which are the conditions of pumping lemma. अगर हमने ऐसा कर लिया, then every word as per pumping lemma, every word x y to the power I z should belong to L. But what we have to do, we have to find a suitable integer I here, such that we can show that x y to the power I z does not belong to L. So अगर ये हमारा हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्शन, क्योंकि एज पर दी पंपिंग लीमा क्या होना चाहिए? x y to the power I z should belong to L for every value of I. There should be no value of I जिसके लिए आप शो कर सकें कि x y की पावर I z does not belong to L. So हमें वैसा ही एक I find करना. If we are able to find such an I so that we can show that x y to the power I z does not belong to L, then it is a contradiction. So okay, if we are able to do this, this contradicts our assumption that L is regular, as it fails to fulfill the requirements of pumping lemma for regular languages. So हमारा ये contradiction आ गया. Contradiction आ गया तो we can show that our language L is not regular. यानी कि हमने जो पहले assumption लिया था कि L regular है, that assumption was wrong, क्योंकि ये condition contradict कर रही है, ये pumping lemma को satisfy नहीं कर रहा. So that's why we will conclude that L is not regular.
I hope process is clear to everyone, class. अगर process clear है, then we will move to the actual questions. सर स्टेप 2 रिपीट कर दीजिए. स्टेप 2 में देखिए पंपिंग लीमा की हमारी कंडीशंस क्या थी कि हम अपनी लैंग्वेज से एक वर्ड W जो कि सफिशिएंट लेंथ का है वो लें और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, x, y, z. उस W को 3 हिस्सों में पार्टीशन करें, x, y, z. इन कंडीशंस के साथ कि लेंथ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू n हो और लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, यानी कि y नल ना हो और एक्स वाई की लेंथ मिला करके n से बड़ी ना हो, n से छोटी ही हो. अगर हम इस तरह से अपने वर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, देन x y to the power I z should belong to L for all I greater than or equal to 0 as per pumping lemma. As per pumping lemma. As per pumping lemma. तो हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को कंट्राडिक्ट करेंगे कि हमने सब कुछ पंपिंग लीमा के हिसाब से कर लिया, एक बार W भी चूज कर लिया, उसको 3 हिस्सों में पार्टीशन भी कर लिया विद रिक्वायर्ड कंडीशंस. तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम I की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हम शो कर सकें कि x y टू द पावर I z जो कि L को बिलोंग करना चाहिए था, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू L. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि अगर लैंग्वेज रेगुलर थी तो पंपिंग लीमा के अकॉर्डिंग ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है. तो गलती कहाँ है, हमारे एजम्पशन में गलती कि हमने L को रेगुलर एज्यूम किया. चूंकि L रेगुलर नहीं है इसीलिए ये पंपिंग लीमा की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा. सो इट इज अ कंट्राडिक्शन. सो दैट्स व्हाई वी conclude that L is not regular. Now it is clear, class? Yes, sir. Okay. So now we'll apply this process to the questions. Okay, so this is our first example which says that show that L is equal to a to the power I such that I is greater than equal to 1, a to the power I square. A to the power I square such that I greater than equal to 1 is not regular. Is it? So language clear है. Language में कौन से words होंगे? L will contain only A's. जब I की value 1 है तो I square is 1. So only A will be in the language. When I की value 2 है, so A to the power I square. I square means 2 का square यानी कि 4. यानी कि 4 A's will be there. जब I की value 3 है I square will be 9. So 9 A's will be there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. अगली बार क्या आएंगे, 16 A आएंगे, उससे अगली बार क्या आएंगे, 25 A आएंगे and so on. Means इसमें जो words होंगे लैंग्वेज में, those will be formed from A's only. उसमें केवल क्या होंगे, A's होंगे. Okay? लेकिन कितने A's होंगे? In a perfect square. In a perfect square of some number. यानी कि length of any string in this particular language should be a perfect square. Is it or not, class? Language is understood. Length of each string in this particular language should be a perfect square. This is the main property of this language, class. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे प्रूव करना है कि it is not a regular language. Okay. So अब देख करके तो नहीं पता चल रहा रेगुलर होगी नहीं होगी. अब मैं कोशिश करूंगा शायद इसका FA बन जाए, हो सकता है कुछ बना भी लूं. अब वो सही होगा गलत होगा वो बाद की बात है. तो देखते हैं कि ये हम प्रूफ कर सकते हैं. प्रूफ करने के हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है. स्टेप 1 क्या कहता है कि सपोज L इज रेगुलर. एज्यूम L is regular. Assume L is regular. और जब रेगुलर है तो FA पॉसिबल होगा. तो FA contains n states. Is it? ये दोनों हमारे assumption है कि हमने assume किया L is regular. और रेगुलर है तो उसके corresponding FA होगा. FA होगा तो it will contain some states. So we say that n number of states are there in the corresponding FA. Okay. So step 1 हो गया. अब हम आते हैं step 2 पर. स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस लैंग्वेज से एक ऐसा वर्ड चूज करना है जिसकी लेंथ इस n से बड़ी हो. इज इट और नॉट?
हमें एक ऐसा वर्ड चूज करना है जिसकी लेंथ इस n से बड़ी हो। हम चूज कर लेते हैं सपोज w इज इक्वल टू a टू द पावर n स्क्वायर। ओके, अगर हमने ये वर्ड चूज कर लिया तो इसमें कितने एज होंगे, n स्क्वायर नंबर ऑफ एज होंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ w क्या होगी, लेंथ ऑफ w विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। इज इट और नॉट क्लास? लेंथ ऑफ w विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा क्लास? यस सर। ओके, एंड n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n, ये भी क्लियर है कि नहीं है? n square is greater than n. Okay, now by pumping lemma, I will write w is equal to x y z। मैंने assume कर लिया w को मैंने इन तीन हिस्सों में ब्रेक कर लिया, x y और z with required conditions। required conditions क्या है कि length of x y should be less than n and length of y should be greater than 0। अब मैं greater than 0 लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी, 1 या कुछ उससे बड़ा होगा। अगर मैं greater than equal to लिखता तो यहाँ 1 लिख देता, या y not equal to 0 लिखता तब भी वही बात थी, तो कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैंने assume कर लिया कि मैंने w को x y z में डिवाइड कर दिया। सो अब मेरे पास तीन हिस्से हैं इसके, x y और z, सब कुछ वर्चुअल है अभी। ओके, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, एक सुटेबल i चूज करना है जिसके लिए मैं शो कर सकूं कि x y टू द पावर i z डज नॉट बिलोंग टू l। ओके, क्योंकि पंपिंग लीमा के हिसाब से मैंने सब कुछ लिखा है, तो कायदे से तो x y टू द पावर i z शुड बिलोंग टू l। ओके, लेट अस चूज i इज इक्वल टू 2। ओके, अगर i इज इक्वल टू 2 है तो मेरा वर्ड क्या हुआ, x y टू द पावर 2 z, यही हुआ ना वर्ड। ओके, अब मैं इस वर्ड की क्या करता हूं, लेंथ चेक करता हूं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वर्ड? लेंथ ऑफ दिस वर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ y प्लस लेंथ ऑफ z। ये पॉइंट क्लियर है सबको? x y स्क्वायर z की लेंथ क्या होगी, बिकॉज इट इज ए स्ट्रिंग, तो इसका पहला हिस्सा है x, तो x में जितने करेक्टर्स होंगे, नहीं x की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी। इसके बाद दूसरे हिस्से में क्या है, 2 y हैं, तो एक y की जो लेंथ होगी उसका अगर डबल कर लूं मैं तो उतने करेक्टर्स आएंगे। उसका तीसरा हिस्सा क्या है, z, तो z की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो इट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग x y टू द पावर 2 z which I have obtained when I have chosen I is equal to 2. Is it clear class? Class, is it clear? Yes sir. Okay, and now this will be strictly greater than length of x plus length of y plus length of z। ये होगा कि नहीं होगा? आप देखिए यहाँ y को मैंने एक ही बार लिया, इधर की तरफ y को 2 बार लिया है। अब ये दोनों, ये इससे बड़ा ना हो, बराबर हो, उसके लिए क्या जरूरी है कि लेंथ ऑफ y शुड बी इक्वल टू 0। अगर लेंथ ऑफ y 0 है तो देखिए ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। इधर भी लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ z बचेगा, इधर भी लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ z बचेगा। बट दैट इज ओनली इन द कंडीशन व्हेन y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू 0, यानी कि y नल हो। और हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हमने पंपिंग लीमा के हिसाब से लिखा है, लेंथ ऑफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा स्ट्रिक्टली इससे बड़ा होगा। इज इट और नॉट क्लास? यस सर। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड, जो लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y और प्लस लेंथ ऑफ z है, ये क्या है, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर और नॉट? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए मेरा वर्ड w की लेंथ क्या थी, n स्क्वायर, और w को ही तो मैंने x y z में ब्रेक करके लिखा है, तो लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y प्लस लेंथ ऑफ z इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ w, and length of w was n square. So length of x plus length of y plus length of z, it is equal to n square. Is it clear? मैं हर स्टेप पे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चलता रहे, कहीं पे भी कोई डाउट है तो वहीं पे रोक करके पूछ लीजिए, ठीक है?
Is it clear, class? Yes, sir. Okay, so I can write that Yes, sir. n square is less than n square is less than n square plus n, less than n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। देखिए एन स्क्वायर तो ये हो गया लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y प्लस लेंथ ऑफ z, ये w की लेंथ। ये एन स्क्वायर प्लस n जो लिखा है वो मैंने लिखा है इस x y स्क्वायर z की लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ x प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ y प्लस लेंथ ऑफ z। अब x और z की लेंथ तो फिक्स है, ठीक है, जो भी है। y की लेंथ पे हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, मुझे पता है मेरा y ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो यानी कुछ ना कुछ तो इसमें आ रहा होगा। लेकिन y की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, y की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, वो हम किससे निकालेंगे, एक्स वाई की लेंथ से। एक्स वाई की लेंथ क्या है, लेस देन n। अगर x की लेंथ जीरो हो, y की लेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब x की लेंथ मिनिमम हो। इज इट क्लियर, एक्स वाई है एक स्ट्रिंग, y की लेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब x की लेंथ मिनिमम हो। और x की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, जीरो। अगर x की मिनिमम लेंथ है जीरो तो y की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, लेस देन n, या मैक्सिमम n मान लीजिए आप। अगर मैं इसे लेस देन इक्वल टू n मान लूं तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, n। तो यानी कि y की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है मेरी, n हो सकती है। इज इट ओके, y की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, n। तो अब आप देखिए मैं x प्लस 2y प्लस z को लिखा मैंने x y z और y। एक्स वाई जेड की जो लेंथ है वो तो हो गई एन स्क्वायर, और जो y की लेंथ है वो क्या हो गई, n। यानी कि जो मेरा जो वर्ड मैंने i इजिकल टू 2 के करस्पॉन्डिंग लिखा है इसकी लेंथ क्या होगी, एन स्क्वायर प्लस एन होगी, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 1 या उससे बड़ी है। इज इट, क्योंकि n क्या है, y की लेंथ है, और y की लेंथ क्या है, जीरो से बड़ी है, तो हमेशा ये क्या होगा, n स्क्वायर से बड़ा होगा। और ये टर्म मैंने अपने आप लिखा है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इट इज बेसिकली n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इज इट, अब ये चूंकि n एन स्क्वायर प्लस n है, यहाँ देखिए 2n है और साथ में एक 1 भी एडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो सेकंड वाला टर्म है ये इस थर्ड वाले टर्म से छोटा होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा। तो ये कंडीशन होल्ड करती है, यानी कि मैं एक तरह से लिख लूं कि मेरी लेंथ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्ट्रिक्टली लाइज between the two perfect squares, that is n स्क्वायर से बड़ा है और n प्लस 1 स्क्वायर से छोटा है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्लास क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या इसकी लेंथ परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, क्लास। देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर है n का स्क्वायर, उससे बड़ी है लेंथ, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है n प्लस 1 का स्क्वायर, उससे छोटी है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। आप देखिए दोनों नहीं एडजेसेंट नंबर्स हैं n और n प्लस 1। इज इट, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई स्क्वायर जेड की जो लेंथ है दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब जबकि इस लैंग्वेज में वर्ड होने के लिए क्या चाहिए था मुझे, इस वर्ड लैंग्वेज के हर वर्ड की लेंथ क्या होगी, इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, इट डज नॉट बिलोंग्स टू एल। इज इट क्लियर, जबकि पंपिंग लीमा के हिसाब से मैंने सारा काम किया था। तो आई इज इक्वल टू 2 के लिए एक्स वाई स्क्वायर जेड जो मेरा ये स्ट्रिंग था इट शुड बिलोंग टू एल, बट आई हैव शोन हेयर that x y square z does not belong to L. So it is a contradiction. It is a contradiction. और contradiction है तो इसका मतलब क्या है, L is not regular. Hence L is not regular. Is it clear? So इस तरह से हम इसको जो है प्रूफ करेंगे। ये क्लियर होगा क्लास?
Is it clear? Class? Yes, sir. ओके अब इसके जो एक क्वेश्चन है, देखिए स्टेप बड़े सिंपल है, 3 स्टेप हैं, लेकिन इसका हर क्वेश्चन एक ट्रिक पे बेस्ड होगा। जैसे आप देखिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में द लेंथ ऑफ द वर्ड वाज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको मैंने यूज किया ये प्रूफ करने के लिए कि कौन सा वर्ड लैंग्वेज का पार्ट है, कौन सा वर्ड लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इज इट? क्योंकि हमेशा मुझे क्या शो करना है कि x y to the power I z does not belong to L for some I। किसी एक I के लिए भी अगर मैं प्रूफ कर दूं कि दिस इज द कंडीशन, तो मेरा क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो मुझे हर जगह ये प्रूफ करना है कि गिवन वर्ड मतलब जो मेरा वर्ड है एक्स वाई टू द पावर आई जेड, दिस डज नॉट बिलोंग टू एल। तो मुझे हमेशा टेस्ट करना है कि कौन से वर्ड्स मेरे लैंग्वेज का पार्ट है, कौन से वर्ड लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सो फॉर दैट the important properties of the languages are required. So here I have cached that important property in this language is the length. Length should be perfect square. So that I have used to prove that x y to the power I z for I is equal to 2 does not belong to L. और उससे मैंने कंट्राडिक्शन प्रूफ किया और मेरा जो है ये प्रूफ हो गया कि L इज नॉट रेगुलर। इसी तरह से जो भी आपको लैंग्वेज दी हुई होगी उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट यू हैव टू कैच, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कंट्राडिक्शन प्रूफ करना है। नॉर्मली जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एग्जाम में अगर कोई नई प्रॉब्लम आएगी आप उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इसी तरह की जो है ट्रिक्स और इसी तरह की प्रॉपर्टीज आपको कैच करनी होती हैं। इफ यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट यू कैन डू इट इजिली, बट इन नॉर्मल केसेस यू विल नॉट बी एबल टू डू इजिली। सो इसका एक ही तरीका है कि आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके गिनती के 5-7 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होकर के एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं वह सारे क्वेश्चन आपको यहाँ जो है डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट L is equal to a to the power p where p is a prime number is not regular। तो अब इस लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या हुई? अगेन लेंथ है इसकी प्रॉपर्टी। लेंथ क्या है? कि लेंथ ऑफ ईच वर्ड इन दिस लैंग्वेज शुड बी ए प्राइम नंबर, यानी कि वही एज का सीक्वेंस होगा मगर उसकी लेंथ क्या होगी? इट विल बी ए प्राइम नंबर बिकॉज a to the power p एंड p is a prime number। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो अगेन हम इसको करते हैं, वापस उसी मेथड से करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए L रेगुलर। एज्यूम L regular and N states in corresponding FA, in corresponding FA, is it? So step 1, step 2, normally step 1 और step 2 में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यही sentences रिपीट करने हैं। ओके, नाउ स्टेप 2 में let P be a prime number greater than N, let P be a prime number greater than n, यानी कि n से बड़ा है, p की जो वैल्यू है वो n से बड़ी है। तो अब अगर मैं अपना वर्ड w इज इक्वल टू a टू द पावर p चूज कर लूं, सो लेंथ ऑफ w इज व्हाट? इट इज इक्वल टू p विच इज ग्रेटर देन n। यानी कि n लेंथ से बड़ा एक वर्ड मेरे को लेना था, वो मैंने सक्सेसफुली ले लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस w को लिख रहा हूँ एज x y z with condition that length of xy should be less than n, less than equal to n, and then length of y should be greater than 0। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब जो x y और z है ये क्या है? चूंकि w के पार्ट्स हैं, w में क्या है? केवल एज है, x में भी केवल एज होंगे, y में भी केवल एज होंगे, z में भी केवल एज होंगे। ओके, सो y का फॉर्मेट क्या होगा? मैं एज्यूम करता हूं कि y विल बी ऑफ द फॉर्म a टू द पावर m फॉर सम m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर 0 हो जाएगी तो y क्या हो जाएगा? नल स्ट्रिंग हो जाएगा, नल स्ट्रिंग नहीं होना है। ओके, सो m की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। सो कुछ एज होंगे, m नंबर ऑफ एज होंगे y के अंदर। सपोज दिस इज द फॉर्मेट ऑफ y। नाउ वी कम टू द स्टेप 3। अब हम क्या करते हैं? वी एज्यूम दैट हमें एक i चूज करना है सो दैट वी कैन शो दैट x y टू द पावर i z डज नॉट बिलोंग टू L। सो I choose I is equal to p plus 1।
आई चूज आई इज इक्वल टू पी प्लस वन। अभी हम देखेंगे कि इसको आई को मैंने पी प्लस वन क्यों चूज किया है। ओके, अब अगर ऐसा है तो एक्स वाई टू द पावर आई जेड, इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लेंथ ऑफ y टू द पावर i माइनस वन। इज इट और नॉट? देखिए x y टू द पावर i z, इसमें एक x है एक z है और i नंबर ऑफ y's है। ठीक है, अब मैंने इसमें से एक x एक y और एक z निकाल लिया, तो x y z मिलके मेरा क्या बन गया w। ओके, और उसके बाद अब इसमें से चूंकि x और z तो निकल गए, y जितने थे उसमें से एक y निकल के यहाँ आ गया, तो कितने y बचे? i माइनस वन वाई बचे, तो i माइनस वन वाई ये रहे। तो यानी कि i माइनस वन वाई की जो लेंथ है प्लस एक्स वाई जेड की जो लेंथ है, दैट विल बी द लेंथ ऑफ एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर आई जेड। इज इट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर क्लास? क्लास? Yes, sir. ओके, सो अब एक्स वाई जेड की हमारी लेंथ क्या है? एक्स वाई जेड की लेंथ हमारी है p, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है w, और w की लेंथ क्या है? w की लेंथ है p। इज इट? सो दैट्स व्हाई एक्स वाई जेड की लेंथ क्या हुई? p हो गई, प्लस i माइनस वन इंटू द लेंथ ऑफ y। अब y की लेंथ क्या है? y को मैंने अज्यूम किया था a टू द पावर m, तो y की लेंथ क्या थी? y की लेंथ थी m, लेंथ ऑफ y वाज m। ओके, और m वाज ग्रेटर देन 0। ओके, सो इट इज i माइनस वन m। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को पुट कर लेता है। i की वैल्यू मैंने क्या यूज किया? i की वैल्यू मैंने यूज की है p प्लस वन। ओके, तो रख लेते हैं इसको। इट इज p प्लस i की जगह p प्लस वन रखिए, तो p प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल रिमेन ओनली p। और उसके बाद इसके साथ क्या है? m। सो इट विल बी pm। जब यहाँ i की वैल्यू आप p प्लस वन रखेंगे इस जगह पे, सो p प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट जाएंगे, केवल p बचेगा। सो pm, p प्लस pm। इज इट क्लियर? ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट p इंटू वन प्लस m। सो दिस इज द लेंथ ऑफ x y टू द पावर i z। ओके, अब x y टू द पावर i z की लेंथ क्या है? दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि इसके क्या होंगे? दो फैक्टर्स हो जाएंगे। It's not prime, लेंथ इज नॉट प्राइम। जबकि इस लैंग्वेज का वर्ड होने के लिए क्या आवश्यक था कि वर्ड की लेंथ क्या होती? प्राइम। क्योंकि एक्स वाई टू द पावर आई जेड की लेंथ प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। इज इट? इसकी लेंथ प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? दिस वर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज। सो एक्स वाई टू द पावर आई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू एल, and it is a contradiction, and it is a contradiction। hence L is not regular, hence L is not regular। is it understood class? again this was based on the length। अब यहाँ क्या था? केवल लेंथ प्राइम नंबर। तो मैंने क्या किया, i का ये p प्लस वन जो चूज किया वो इसी वजह से चूज किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ p प्लस वन रखूंगा तभी यहाँ मेरा ये फैक्टर इस तरह से बन पाएगा। इज इट? और नंबर्स के लिए मैं चेक करूंगा, मुझे नहीं मिलेगा। सो दीज आर द ट्रिक्स। सो एक तरह से ये ट्रिकी पार्ट है इसका। इसमें इसकी प्रॉब्लम में हमेशा तीन हिस्से हैं। पहला, आप w क्या लेते हो, उसको इन कंडीशंस के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हो, और i की वैल्यू क्या लेते हो। ये तीन चीज़ें आप अगर सही डिसाइड कर लोगे तो आप हमेशा जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। बट अगेन हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ट्रिक है, तो अगर आपने एक बार की हुई है प्रॉब्लम तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं की हुई है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, हो सकता है आप कर पाए, हो सकता है आप नहीं कर पाए। इज इट क्लियर क्लास? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Okay, next example is show that L is 0 to the power I, 1 to the power I greater than equal to 1 is not regular। वैसे तो हमने आपको भी पिछले लेक्चर में बताया था कि ये रेगुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ आपके पास दो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आपने मैच करना है। दोनों क्वांटिटीज देखिए, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो मैच करना है यहाँ पे।
और i पे कोई बाउंडेशन नहीं है बिकॉज i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो i इज अनबाउंडेड, आप i के लिए इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. ओके, सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड यू हैव टू मैच टू क्वांटिटीज. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज ए नॉट रेगुलर लैंग्वेज. बट केवल हमारे सपोर्ट से लॉजिकली समझ में तो आता है, but it is not a formal mathematical proof. Okay, so let us do a formal mathematical proof for it. So step 1, ये assume करिए L, assume L is regular and N is number of states in corresponding FA. In some textbooks, this N is also called as pumping number. Pumping number or pumping value. Okay, so चाहे जो कहिए, but एक्चुअली हमारे टर्म्स में क्या है, इट इज नंबर ऑफ स्टेट्स इन दी कॉरस्पॉन्डिंग एफए. अगर एल मेरा रेगुलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफए होगा. मैंने एज्यूम किया कि उस एफए में मेरी एन नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी. ओके, देन स्टेप 2 में अब मुझे एक वर्ड चूज करना है जिसकी लेंथ n से बड़ी हो. सो लेट अस अज्यूम यहाँ मैंने चूज कर लिया वर्ड 0 टू द पावर n, 1 टू द पावर n. अब 0 टू द पावर n, 1 टू द पावर n है, इसकी लेंथ क्या होगी? क्लास. What will be the length of this word W? Someone from class, what will be the length of this word W? W is 0 to the power n, 1 to the power n. Yes, very good. 2n will be the length, क्योंकि n zeros हैं, n ones हैं, सारे मिला लेंगे तो टोटल कितने करेक्टर्स हैं इसके अंदर? 2n करेक्टर्स हैं. So length of W is 2n, which is greater than n. यानी कि मेरा जो assumption था W को sufficient length का लेने का, वो मेरा यहाँ सही हो गया. अब इसके बाद मैं पंपिंग लीमा के अकॉर्डिंग W को लिख देता हूँ, W is equal to x, y, z. So as per pumping लीमा, W is equal to x, y, z with length of x, y is less than equal to n and length of y not equal to 0. अब आते हैं स्टेप 3 पे. स्टेप 3 पे मूव करने से पहले मुझे पहले एक i की वैल्यू चूज करनी है. उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा यहाँ जो y है उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है. इज इट? अब अगर मेरा y है तो देखिए y में हो सकता है केवल जीरोज हो, y में हो सकता है केवल वंस हो, या y में जीरोज और वंस हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो वर्ड w है, w का फॉर्मेट क्या है? सपोज w द वैल्यू ऑफ n इज 3. ओके, सो देयर आर 3 zeros एंड 3 ones. ओके, अब अगर y मेरा सपोज इस पोर्शन में है, इट इज ओनली 0, या सपोज ये डबल भी है तब भी इट इज 0 ओनली. ओके, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये कि y के अंदर केवल जीरोज, यानी कि y का फॉर्मेट क्या है? y इज इक्वल टू 0 टू द पावर m. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि y इधर लाई नहीं करता, यहाँ तक मेरा x रहा, ये मेरा y है, या सपोज ये मेरा y है, या सपोज ये मेरा y है, समथिंग लाइक दिस. सो y कंटेन्स ओनली द वंस, सो y इज इक्वल टू 1 टू द पावर l. ओके, सॉरी इसको मैं कह देता हूँ y इज इक्वल टू 1 टू द 0 टू द पावर k एंड 1 टू द पावर l. ओके, यानी उसमें केवल वंस हैं. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सपोज मेरा x तो यहाँ तक हो गया और इस जगह से मेरा y स्टार्ट हुआ और वो 1 की तरफ भी चला गया. सपोज उसमें कुछ जीरोज भी हैं, कुछ वंस भी हैं. ओके, इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस हो, ये जरूरी नहीं हो सकता 1 0 2 1 हो सकता है 2 0 हो 1 1 हो, समथिंग लाइक दैट. बट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ जीरोज एंड सर्टेन नंबर ऑफ वंस, यानी कि मिडिल से कहीं से ले रहा हूँ. सो y का फॉर्मेट मेरा हो सकता है 0 टू द पावर k 1 टू द पावर l, समथिंग लाइक दिस. सो ये 3 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी y के लिए नहीं है. तो मेरे ये 3 केस हो गए. केस 1,
y इज इक्वल टू 0 टू द पावर k। अगर ये पॉसिबिलिटी है, वैसे आप अगर ध्यान से देखें हमारी रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग इनमें से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्योंकि मैं 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n लिया है, सो y विल बी ऑफ द फॉर्म ओनली 0 टू द पावर k, क्योंकि देखिए हमारा n यहीं तक फिनिश हो जाता है क्योंकि 2n है हमारे वर्ड की लेंथ, तो हमारा n जीरोस में ही फिनिश हो जाएगा। यानी y चूंकि एक्स वाई की जो लेंथ है वो n से लेस या मैक्सिमम इक्वल है, सो y अकेला जो है मैक्सिमम n लेंथ हो सकती है। ओके, तो हम केवल जो है इसी के अंदर अंदर आ सकते हैं। बट इवन देन इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जाम्पल लिया होता सम इन अदर इन सम अदर जनरल केसेस आल्सो, तो हमारी ये पॉसिबिलिटीज भी अकर कर सकती थी। इज इट? दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दीज। अदरवाइज कंट्राडिक्शन शो करने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से भी शो कर दें, इट इज ओके, दैट इज वैलिड, दैट इज ए वैलिड प्रूफ। ओके, सो y इज इक्वल टू 0 टू द पावर k, हमारा ये हो गया केस 1। ठीक है, अब इस केस में मैं क्या करता हूं, मैं i की वैल्यू का लेता हूं 0। अगर i की वैल्यू 0 लेता हूं, मेरा स्ट्रिंग क्या बचा, x z, y यानी उसमें से फिनिश हो गया। x z बचा तो क्या हुआ, x में अब देखिए जब मेरा w था, अगर ये फॉर्मेट था मेरा, तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म 0 टू द पावर n माइनस k, then 0 to the power k, then 1 to the power n, something like this. Okay, अब अगर मैं यहाँ से ये 0 टू द पावर k खत्म कर दूँ, यानी कि ये मेरा था y, ये था मेरा x और ये था मेरा z। अगर मैं यहाँ से y खत्म कर दूँ, तो आई विल बी हैविंग 0 टू द पावर n माइनस k एंड 1 टू द पावर n। अब n माइनस k और n दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब k की वैल्यू 0 हो, लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ एज्यूम किया 0 टू द पावर k। अगर k की वैल्यू 0 होगी तो y विल बी एप्सिलॉन एंड द लेंथ ऑफ y विल बी इक्वल टू 0। बट हमारा एजम्पशन क्या है, लेंथ ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये दो क्वांटिटीज n माइनस k और n कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस विल नॉट बी इक्वल इन दिस वर्ड xz which I have obtained when I is equal to 0. Is it? So it means कि this xz does not belongs to L, क्योंकि इस लैंग्वेज में का वर्ड होने के लिए नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ मैंने क्या शो किया है कि अगर मेरा y इस फॉर्म का है और मैं i की वैल्यू 0 ले लूं, तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस इक्वल नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस वर्ड xz does not belong to L, so it is in contradiction and my L is not regular. This is in case 1. Similarly in case 2, if y is of the form 1 to the power L, so आपका W कुछ इस तरह का फॉर्मेट में होगा 0 to the power n, 1 to the power L and 1 to the power n minus L. Is it? ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z। Is it? Okay, तो अब अगर इसमें से मैं अगेन i इज इक्वल टू 0 ले लूँ, जैसे मैंने पिछले वाले में लिया। ओके, तो मेरा वर्ड क्या बचेगा, xz, यानी मेरा वर्ड क्या बचेगा 0 टू द पावर n एंड 1 टू द पावर n माइनस l। अब अगेन l कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि y मेरा लेंथ ऑफ y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी कि y में कुछ ना कुछ सिंबल्स होंगे, यानी कि l कैन नॉट बी इक्वल टू 0, l विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, l विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, सो यानी कि ये n और n माइनस l कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल नहीं होंगे तो xz डज नॉट बिलोंग्स टू l, क्योंकि इस लैंग्वेज का वर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस बराबर होने चाहिए थे, जो कि यहाँ नहीं है। तो अगेन इट इज अ कंट्राडिक्शन एंड आई कैन प्रूव दैट माय लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। नाउ कम ऑन केस 3। केस 3 इज when y is of the form 0 to the power k 1 to the power l, y is of the form 0 to the power k 1 to the power l। so यहाँ मेरा w किस फॉर्मेट का होगा, 0 to the power n minus k, 0 to the power k, 1 to the power l and 1 to the power n minus l। यहाँ देखिए ये मेरा पार्ट है x, ये मेरा पार्ट है y और ये मेरा पार्ट है z। इज इट क्लियर? सो ये आपका हो गया। अब आप देखिए यहाँ मैं लेता हूँ i इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ मैं अगर i इज इक्वल टू 0 लूँ तो देखिए y खत्म हो जाएगा इसमें से,
इधर n माइनस के बचेगा, इधर n माइनस एल बचेगा। बाई चांस k और l भले ही जीरो नहीं है मगर इक्वल है, k और l दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस कम होंगे, यानी कि बचे हुए स्ट्रिंग में आपके नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस इक्वल हो सकते हैं। इज इट? तो यानी कि i इक्वल टू जीरो लेने से मुझे श्योर शॉर्ट प्रूफ नहीं होता कि दिस वर्ड विल नॉट बिलोंग्स टू अस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग i इज इक्वल टू जीरो, आई एम टेकिंग i इज इक्वल टू 2। अगर i इज इक्वल टू 2 ले रहा हूं तो मेरा वर्ड क्या बनेगा, x y टू द पावर 2 z, या x y टू द पावर 2 z। ओके, ये वर्ड क्या होगा, x यानी कि 0 टू द पावर n माइनस के, y 2 टाइम्स यानी कि y y, तो एक बार y है 0 टू द पावर k, अगला y 1 टू द पावर l, ये मेरा हो गया एक y। अगला y क्या होगा, 0 टू द पावर k 1 टू द पावर l। उसके बाद आएगा z, z इज 1 टू द पावर n माइनस l। अगेन अगर k और l इक्वल है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस इक्वल हो सकते हैं, तो मैं नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस पे जा ही नहीं रहा। लेकिन आप यहाँ फॉर्मेट देखिए वर्ड का, आप यहाँ क्या देखिए, वर्ड का फॉर्मेट देखिए, कुछ जीरोज आए, उसके बाद 1 आए, उसके बाद फिर जीरोज आ गए। क्या आपके वर्ड में ऐसा पॉसिबल है? आपके वर्ड में सारे जीरोज एक साथ आने हैं, और जब जीरोज आने बंद हो जाएंगे तो सारे वंस आएंगे, और उसके बाद इन जीरोज का और इन वंस का नंबर इक्वल होगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 1 के बाद फिर वापस जीरो हो जाए। इज इट? सो जीरोज और 1 का ना केवल नंबर इक्वल है बल्कि सारे जीरोज साथ आ रहे हैं और सारे वंस साथ आ रहे हैं। जबकि यहाँ आपके इस स्ट्रिंग में आप देखिए, जीरोज के बाद 1 आए, 1 के बाद वापस जीरोज आ गए। सो दिस वर्ड does not have the same format as our language, as the words in our language are having. So that's why x, y square z does not belongs to L. So in this case also we got the contradiction, and we can see that in all the cases, whatsoever example you take, your this language is not regular. Is it clear, class? क्लास इट इज क्लियर? इसमें देखिए मैंने आपको 3 केस करके बताया है, केस 1, केस 2, केस 3। इसमें अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखूं तो मेरा केवल केस 1 ही एप्लीकेबल है, ये दोनों केस एप्लीकेबल नहीं है। और आप एक केस में भी कंट्राडिक्शन दिखा देते हैं तब भी जो है आपका प्रूफ करेक्ट होगा। बट अगर मैं ये एग्जाम्पल नहीं लेता, कोई और एग्जाम्पल लेता जिसमें n से बड़ी लेंथ होती बट एग्जैक्टली डबल नहीं होती, तो हो सकता है कि कुछ जीरोज आगे आधे से आगे तक जा रहे होते, तो उस केस में आपको जो है ये वाले दोनों केसेस मिल सकते थे जहाँ पे y में केवल वंस हैं और या y में जीरोज एंड वंस दोनों हैं। तो हमने इन जनरल सारे ही केसेस ले लिए। अगर हम कुछ भी एग्जाम्पल लेते तो सब कुछ हमने दिखा करके इन एवरी केस वी आर गेटिंग द कंट्राडिक्शन। क्लास इट इज क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? सर यस। सर ये केस 1 में w इज इक्वल टू 0 की पावर n माइनस के, 0 की पावर k और 1 की पावर n कैसे आया? किस में? थर्ड केस में? यस सर। सर स्टेप 3 में केस 1 पे, केस 1। केस 1 में, केस 1 में क्या चीज, w इज इक्वल टू सर 0 टू ये द पावर। w कैसे आया? अच्छा, W कैसे आया? ये देखिए W क्या है, W इज इक्वल नंबर ऑफ, W इज 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n। इज इट और नॉट? ओके, अब मैंने इसमें से क्या किया, क्योंकि y में मेरे केवल जीरोज ही हैं, y में मेरे केवल क्या है, जीरोज ही हैं, तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया कि 0 टू द पावर n माइनस के, 0 टू द पावर k, तो दोनों मिला के क्या हो गए 0 टू द पावर n, और इधर मेरा क्या हुआ 1 टू द पावर n। मैं जरूरी नहीं इसको इसी फॉर्मेट में लिखूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज 0 टू द पावर n माइनस के माइनस एल। ओके, उसके बाद मैंने लिखा 0 टू द पावर k, उसके बाद मैंने लिखा 0 टू द पावर l और 1 टू द पावर n। सो यहाँ मेरा क्या है, दिस पार्ट इज x, दिस पार्ट इज y, क्योंकि ये तो मैं y एज्यूम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं 0 टू द पावर के लिए, तो जहाँ भी मेरा k वाला पोर्शन आ रहा है इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ y। उसके बाद मेरा बचा हुआ हिस्सा क्या है, ये z। सो यहाँ पे क्या है, z, x और z कुछ भी कंटेन कर सकते हैं, मुझे केवल y पे फोकस करना है। इज इट? तो ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया था, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब भी यही चीजें फॉलो करेंगी। इज इट? क्योंकि आप देखिए वापस एक्स जेड लिखेंगे इससे, एक्स में क्या आएगा 0 टू द पावर n माइनस के माइनस एल। उसके बाद y है नहीं तो 0 टू द पावर के गायब हो गया, z आएगा, z में क्या है 0 टू द पावर l
1 टू द पावर n, अगेन इसका रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए यहाँ l कम है, यहाँ उतने ही l आ गए मेरे पास, तो 0 की पावर कितनी बची? n माइनस के, 0 की पावर n माइनस के, और इधर क्या बचा? 1 की पावर n। इज इट? अगेन मुझे क्या चेक करना है? n और n माइनस के दे विल नॉट बी इक्वल एज k इज नॉट इक्वल टू 0। इज इट? तो जैसे मैंने यहाँ प्रूव किया था वैसे ही यहाँ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैंने एक ब्रेकअप लिखा था बिकॉज मुझे क्या करना है, एक सफिशिएंट लेंथ का वर्ड लेना है, उसको एक पर्टिकुलर ब्रेकअप में करना है जो कि मेरी कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो कि लेंथ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू एन, और वाई की लेंथ 0 ना हो। तो आप देखिए यहाँ लेंथ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एन, मैंने इसको फॉलो किया था। कुल मिला के मेरा वाई एक्स वाई जो है वो एन के बियॉन्ड नहीं जा रहा था। इज इट? ऐसे ही मैंने यहाँ भी क्या किया है, यहाँ भी यही इंश्योर किया कि जो मेरा एक्स वाई मिल करके है, चूंकि देखिए एन तो मेरा यहाँ तक आएगा ना, इस जगह तक 0 की पावर n इस जगह तक आएगा, तो उससे पहले पहले ही मैंने एक्स वाई अपना खत्म कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पंपिंग लीमा की कंडीशंस को फॉलो करते हुए ब्रेकअप किया है। सो एनी इसी तरह के एक नहीं बहुत सारे ब्रेकअप पॉसिबल हो सकते हैं, आप उसमें से कोई सा भी एक ब्रेकअप लेकर के दिखला दीजिए। इज इट? क्योंकि मैंने आपको कहा कंट्राडिक्शन के लिए कोई एक केस में भी आप कंट्राडिक्शन दिखा दें दैट इज सफिशिएंट। आपको जरूरी नहीं कि इन जनरल हर केस में कंट्राडिक्शन आ रहा है ये दिखाना आवश्यक नहीं है। क्लास नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. Okay. So now we move to the next question. Next question says that L is equal to WW. W belonging to A, comma B asterisk. It is not regular. ये क्या हुआ? ये एक तरह से आपके क्या हुआ? पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B। ये वही तो लैंग्वेज है पैलिंड्रोम्स, यानी कि आप इधर से पढ़ोगे तो भी W आएगा, इधर से पढ़ोगे तो भी W। तो सारे वर्ड होंगे पैलिंड्रोम्स होंगे, और वर्ड्स की लेंथ क्या होगी? इवन होगी हमेशा, इवन लेंथ के पैलिंड्रोम्स होंगे। क्योंकि अगर देखिए W की लेंथ 1 है तो एक लेंथ 1 यहाँ से आएगी तब भी डबल हो जाएगी, W की लेंथ 2 है तो 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से तो 4 हो गए, यानी हर केस में वर्ड की लेंथ क्या होगी? इवन। सो इवन लेंथ के पैलिंड्रोम्स हैं ये सारे के सारे, ऑड लेंथ वाले पैलिंड्रोम नहीं है इसके अंदर। इज इट? सो ए और बी के ऊपर जितने भी इवन लेंथ के पैलिंड्रोम बन सकते हैं ये वो लैंग्वेज है। ये क्लियर होगा क्लास? लैंग्वेज इज क्लियर? Class, language is clear? W may be any word over A and B, and then same word has to be repeated. So our word is of the form WW. Class, is it clear? Yes, sir. Okay. So again वही step 1 आप कर लेंगे, अपने आप लिख लेंगे कि हमने क्या किया, एज्यूम किया कि मेरा लैंग्वेज L जो है वो क्या है? रेगुलर है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ में n स्टेट्स हैं। ओके, सो n जो है क्या होगा? नंबर हो गया। इज इट? अब मैंने स्टेप 2 में मुझे वर्ड चूज करना है। मैंने वर्ड चूज किया W इज इक्वल टू A टू द पावर n B, A टू द पावर n B। इज इट? यानी मैंने जो मेरा वर्ड था, देखिए ये पार्ट एंड देन द सेम पार्ट इज रिपीटेड। इज इट? सो ये वर्ड चूज किया। अब अगेन ये जितने भी मैं वर्ड चूज करूँ, इन सारी प्रॉब्लम से जो इंपॉर्टेंट है यही है कि आप क्या वर्ड चूज करते हैं, उसको किस तरह से ब्रेक करते हैं, और फिर आई की किस वैल्यू के लिए उसमें कंट्राडिक्शन शो करते हैं। सो यही पार्ट जो है इन प्रॉब्लम्स में ट्रिकी पार्ट है। अब आप A टू द पावर n B के अलावा किसी से करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं हो सकता है, बट इट मे बी डिफिकल्ट, और कई केसेस में हो सकता है नहीं भी हो पाए। ओके, तो इसलिए हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। सो इसीलिए दीज क्वेश्चंस आर ट्रिकी क्वेश्चंस। सो A टू द पावर n B, A टू द पावर n B ये मैंने चूज किया, देखिए WW फॉर्मेट हो गया, सेम वर्ड हैज बीन रिपीटेड। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ W? लेंथ ऑफ W here is 2n plus 2। इज इट? देखिए एक n ये आ गया, एक n ये आ गया, 2n हो गई, एक लेटर ये आ गया और एक लेटर ये आ गया, 2 ये हो गया, तो 2n plus 2 दिस विल बी द लेंथ ऑफ W एंड इट इज ग्रेटर देन n, जो कि हमारी पंपिंग लेंथ थी जो हमने एज्यूम की थी। सो इससे बड़ा यानी कि हमने सफिशिएंट लेंथ का वर्ड ले लिया। अब हमने इसको वही लिखा W इज इक्वल टू XYZ with
length of y not equal to 0 and length of xy लेस देन इक्वल टू n। ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमने एक्स वाई जेड को यानी इस वर्ड w को इस तरह से डिवाइड किया। देन कम ऑन दी स्टेप 3। अब आप देखिए, अगर आपने इस तरह से डिवाइड किया है तो यानी कि y की लेंथ 0 नहीं होगी और xy की लेंथ n से छोटी छोटी होगी। इसमें n कहाँ तक आ रहा है w में? इस w में n आ रहा है इस जगह तक, इज इट? जहाँ पे मैंने ये लाइन खींची है इस जगह तक आ रहा है, यानी कि w में क्या, यानी कि मेरे y में क्या आएंगे? केवल a's आएंगे। क्या आएंगे? केवल a's आएंगे। यानी y विल बी ऑफ द फॉर्म a टू द पावर I से k, ओके। तो i टू द पावर a टू द पावर k, इस फॉर्मेट का मेरा y है, इज इट? ओके। सो अब अगर इस फॉर्मेट का मेरा y है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिंपली आई कैन टेक I is equal to 0. I take I is equal to 0. अब I is equal to, जब देखिए y ये इस फॉर्म का है तो w कुछ कैसा होगा? w कुछ ऐसा होगा, इट विल बी a टू द पावर n माइनस k, ओके, एंड a टू द पावर k। ये इस a टू द पावर n में मेरा x और y दोनों आ गए। अब होने को ये भी हो सकता है यहाँ a टू द पावर n माइनस के माइनस एल, यानी कि यहाँ और कम a हो, फिर a टू द पावर k आया। अब a टू द पावर n माइनस के माइनस एल प्लस k, तो k तो कैंसिल आउट हो गया, अभी भी एल a बचे हुए हैं। सो मैं फिर वो उसके बाद वो a टू द पावर l लिखूँ, a टू द पावर l लिखूँ, तब मेरे क्या हुए a टू द, यानी यहाँ तक मेरी n लेंथ पूरी होगी। इसके बाद क्या आएगा? b आएगा, फिर a टू द पावर n आएगा, फिर b आएगा। तो ये सारा का सारा हिस्सा मेरा क्या है? सपोज दिस इज माई z, सपोज ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए, ओके। अब मैं क्या ले रहा हूँ? i इज इक्वल टू 0, यानी कि एक तरह से इस y वाले हिस्से को रिमूव कर दे रहा हूँ। सो xz विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू a टू द पावर n माइनस k, n माइनस k माइनस l था ना, चूंकि मैंने यहाँ ले लिया, इज इट? n माइनस k माइनस l, ओके। एंड देन z इज a टू द पावर l, b a टू द पावर n, b a टू द पावर n, b, इज इट? अब इनको मैं मर्ज करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? a टू द पावर n माइनस के बचेगा, इधर b बचेगा, इधर a टू द पावर n बचेगा, इधर b बचेगा, इज इट? अब n माइनस, अगर ये सेम वर्ड का रेपिटेशन हो सकता है अगर n माइनस के और n बराबर हो गए। अब n माइनस के और n कब बराबर होंगे? जब k इक्वल टू 0 होगा। क्या k इक्वल टू 0 हो सकता है? ना। क्यों? क्योंकि y की लेंथ 0 नहीं है। सो दैट्स वाई k विल नॉट बी इक्वल टू 0, k विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो n माइनस के और n ये इक्वल नहीं होंगे। ये सेम वर्ड का रेपिटेशन आप नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाई दिस xz does not belongs to L. Or if xz does not belongs to L, so hence it is a contradiction, and hence so it is contradiction. I am writing in short. आप पूरी लैंग्वेज लिखिएगा अगर कभी एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। Hence L is not regular. Understood, class? It is understood? क्लास? यस सर। ओके। अब इसी तरह से अगला प्रॉब्लम है WWR। ये बिल्कुल सेम अभी जो पिछला प्रॉब्लम किया बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। सो दिस आई एम लीविंग एज होम एक्सरसाइज फॉर यू, ओके। इट इज होम एक्सरसाइज, इसको घर से करिएगा आप। सिमिलरली a टू द पावर n, b a टू द पावर n, ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह से होगा। इसको आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। Then next problem is 0 to the power n, 1 to the power m, where n is less than equal to. Normally 0 to the power n, 1 to the power m regular होता, बशर्ते n और m आपस में रिलेटेड ना होते। अगर मैंने यहाँ लिखा होता n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एनीथिंग, ओके, तो क्या होता? यही लैंग्वेज आपकी रेगुलर होती, क्योंकि n और m आपस में रिलेटेड नहीं है। ये दो क्वांटिटीज आपने मैच नहीं करानी कहीं भी। और जैसे ही मैंने n और m के बीच में एक रिलेशनशिप लिखी, वैसे ही मेरा क्या हुआ? ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, एक दूसरे से अटैच हो गई। यानी कि अब मुझे इसमें चेकिंग की, कंपैरिजन की, मैचिंग की आवश्यकता है, ओके। जहां मैचिंग आ गई वहीं पे आपका क्या हो गया? वहीं पे आपका जो है
non-regular होगी language. Okay, so we can understand this that this language is not regular. Okay, this language is not regular. Now you have to prove it. Okay, so इसका proof different है उन सब से, but I am not doing it. आप इसको जो है इंटरनेट से जो है इसका आंसर सर्च करिए और अपने आप समझ करके करने की कोशिश करिए. इसी तरह से चूंकि ये एक प्रॉब्लम आप कर लेंगे तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी. जैसे n लेस देन इक्वल टू m है, कहीं n इक्वल टू m आ गया, कहीं n ग्रेटर देन इक्वल टू m आ गया, कहीं n स्ट्रिक्टली लेस देन m आ गया, कहीं n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m आ गया. सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इज इट? तो आप एक प्रॉब्लम कर लेंगे तो बाकी सबका सॉल्यूशन हो जाएगा. सो दिस आई एम लीविंग एज होम एक्सरसाइज फॉर यू. सो आप इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, नेट पर से इनके आंसर देखने की कोशिश करिए. सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस फॉर टुडे. सो एट दिस पॉइंट आई क्लोज द क्लास. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we can close and leave. Class. Can we close, or is there any doubt? No doubt, sir. Okay, so I am closing at this point of time.